Welcome students in the next lecture, topology of real numbers. Today we will discuss these topics. These are the basic topics and you will enjoy it, I hope. Let's start with set. What is a set? A set, you know very well when you are in 11th class and you define it. Well defined collection of objects. Objects. Objects may be called as things and anything else. What is main thing is here well defined. What you mean by well defined? By well defined we mean we can clearly decide which element is in the set and which is not. Means we can clearly decide, means there is no confusion whether the elements belongs to it or not. For example, when you say a chair, then you have no doubt what is it. When you say kuch and something you have doubt, means please bring out something, then what you will take and come out with, क्या लेके आएंगे आप कंफ्यूजन में है, then that's not. For example, a set of good people to whom you say it is he is or she is not good or bad. So if there is anything doubt in the belongingness of the whether you can say definition of the set, then that thing, that collection cannot be called as a set. And a set may be finite or infinite, may be defined depending on the number of items in it. When the counting of the elements of a set comes to an end, then it will be called as a finite. If the counting doesn't come to an end, then it will be called as a infinite set. As for example, a set of you can say students of a class, then we can count, it can be 30, 40, 50. How it cannot be, you can say they are finite. When I say set of natural numbers, so you cannot say this is the last natural number. Countability is something different. So counting means physical counting. You can say 1, 2, 3, 4. If when you count a set of elements, then if this counting comes to an end, then that set will be called as finite. Otherwise, it will be infinite. For example, for this, you can say set these 4, and in this case, you can say 1, 2, 3 shown natural set of natural numbers. This is infinite. Many times, students, what happens? We have interval infinite elements. For example, in case of natural numbers, there is gap when 1, 2, then the number of lot of elements 1.1, 1.2, which are left behind. So we have to write individually these elements. But in case of, if you have I have a line and 1, 2, 3. For example, if I have to collect all the elements from this, from here to here, nothing is to be left, then this will be called as a interval, and it will have a specific notation because it starts from 1.2 to 2.5. Then there is two things come out, whether you include 1.2 or not, whether you include 2.5 or not. If you include 1.2 and also include 2.5, then this set means, if I say x belongs to it, it implies x is between 1.2 to 2.5, and x will take every value between 1.5 to 2.5. Okay, if I doesn't include 1.2, then left side it will be called as open, and right side it will be called as a closed interval. So it can be called as a semi-closed or semi-open. So this type of interval 1.2 to 2.5.
Okay, we can do this like also 1.2 can be included, 1.2.5 may be left. So this will be called as right side open, left side closed, and both these can be left out, 1.2.5. But all the elements between 1.2 to 2.5 means if x belongs to this, then x will be from 1.2 to 2.5. Okay, neither x will take value as 1.2 nor 2.5. In this case, x will take value 1.2, but it will not take 2.5. And in this case, x will take value will not take value 1.2, but it will take value 2.5 and take every value between this. And this is called as an interval. Before, because it is not possible to write every element of this interval. You can, if you think that I can write, then try it home. And you when you write anything, then there will be infinite, because between every two real numbers there are infinite real number between them. So it is not possible to write so in this form. We can say individually 1 2 3 4 इस फॉर्म में, या you can say 1.1 1.2 इस तरह से आप लिखेंगे तो कहीं ना कहीं 1.1 और 1.2 के बीच में फिर छूट जाएगा कोई ना कोई, लेकिन हमने सारे लेने हैं तो इसलिए हमने स्पेसिफिक नोटेशन मीन्स इंटरवल इज नथिंग बट ए सेट ऑफ रियल नंबर्स included between these two. Whether these two are to be included, it will depend on if these are included, then it will be called as closed. If they are not included, then it will be called as open. Which side is to be included, that side will be called closed. For example, this is left open, right closed. So we will say it as semi closed. So students, this is an interval. Now let's move to bounded set. To whom you say bounded? Students, you must know that bound are of two types: bounded above or bounded below. What we mean by bounded above? Bounded above means when I set a limit, you cannot go above this, and when I set a limit, you cannot go below this. Then it will be called as a lower, the bounded below or bounded above. For example, I have a set. मैं इसको एक बार साफ कर देता हूँ फॉर वाले को. If I have a set, this S, for example, this set 1 2 3 4 5. For example, this set 0 1 2 3 and इस तरह से पीछे सारे आ सकते हैं. तो so all the elements of this set are less than equal to 4. So it is bounded above. All the elements of this set are also less than equal to 3. So it is also bounded above. Okay, means if I have K such that if S is any set, then S is said to be bounded above if there exists a real number K such that x is less than equal to K for all x belongs to S. Means S का कोई भी एलिमेंट K से के बराबर या उससे छोटा ही छोटा है. Okay, for example 4 is upper bound and the bounded above है जो ऐसा ये नंबर है, then this K will be called as a upper bound. For example, 4 is upper bound for this. One thing you must note students, कि एक ही सेट, अगर कोई सेट बाउंडेड अबव है तो उसके इनफाइनाइट अपर बाउंड्स हैं. फॉर एग्जांपल 4 इज इट्स अपर बाउंड, 5 is its upper bound, 5.1 is also its upper bound, 100 is also its upper bound, 1001 is also upper bound, 10,000 is upper bound, and so on. So every set bounded above has infinite number of upper bounds. But one thing you must know students, we are never interested into infinite number. It means जब कहीं भी जाते हैं तो आप देखते हैं कि भाई जब कोई चीज़ें दिखाता है तो आप बोलते हैं एक की बात करो, जस्ट टेल वन थिंग, मीन्स यूनिकनेस. तो सो हम लोग करते क्या है स्टूडेंट्स. अब मैं एक बार बीच में बात करूंगा लिस्ट अपर बाउंड की.
अब इन बाउंड्स में जो सबसे छोटा है, इट डजंट मीन इट इज नॉट अपर बाउंड, बट इट इज लिस्ट ऑफ द अपर बाउंड, यानी दिस इज विल बी कॉल्ड एज ए लिस्ट अपर बाउंड. K, small k, capital K such that capital K is a list upper bound. ये लिस्ट अपर बाउंड है, इससे छोटा कोई बाउंड नहीं होगा. मीन्स व्हाट यू मीन बाय इट, जब आप कहेंगे ये बाउंड नहीं है यानी अपर बाउंड नहीं है, उससे छोटा, तो मीन्स if you take if any you can say P is less than K and K is least upper bound LUB, then if P is less than K then P is not upper bound. अब जब मैं कहूँ कि ये बच्चा इस क्लास के अंदर सबसे बड़ा नहीं है, एज में सबसे बड़ा नहीं है, तो इस मीन्स व्हाट इट मीन्स, कोई ना कोई बच्चा उससे बड़ा है, कम से कम एक तो जरूर. तो इट मीन्स इफ P is less than K and K is least upper bound, then there exists some X belonging to your set such that X is greater than P. याद रखना, इनइक्वलिटी में इक्वल टू नहीं है यहाँ पे. Then there exists an element X belonging to this set such that P is less than this S. कम से कम एक है. जैसे आप कहें कि क्या 3.9 इसका लिस्ट अपर बाउंड है? नहीं है. क्यों नहीं है? क्यों 4 इसका लिस्ट अपर बाउंड क्यों है? क्योंकि 4 से कम कोई भी नंबर ले लो. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 3.1 लिया, 3.9 लिया, तो 3.9 से बड़ा है 4. बाई चांस ये तो इंडिविजुअल नंबर्स हैं 1 2 3 4. अगर मैं यहाँ पे ऐसे ले लेता हूँ, मैं 1 से 4 ही ले लेता और 4 इसका लिस्ट अपर बाउंड है और 4 में से थोड़ा सा भी कम कर देता फॉर एग्जांपल. और वैसे होता भी क्या है कि लिस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन ये भी है कि यू फॉर अपर बाउंड एंड यू इज सेट टू बी लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सेट एस इफ फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0. एप्सिलॉन इज एनी पॉजिटिव नंबर. स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखना, कि एप्सिलॉन डेल्टा हैं, दीज आर यूज्ड फॉर स्मॉल नंबर्स एंड एज दीज आर यूज्ड इन ये रोमन्स अल्फ़ाबेट्स हैं ये, तो सो हमारे अंदर वो सेंस नहीं आती. अगर मैं कोई कहूँ कि तोला या मासा या कुछ इस तरह की छोटी बात करूँ तो आपके दिमाग में आएगा कि बहुत छोटी बात है, क्योंकि मासा जो होता है बहुत छोटी यूनिट है वेट की. तो उसी तरह से वहाँ पे जो है हम लोग जो है वर्ड्स हैं ये एप्सिलॉन, ऑल्दो दीज आर द रिंग्स ऑफ शनि सैटर्न, एंड जो सबसे नज़दीक की रिंग है उसको एप्सिलॉन बोलते हैं. उसके बाद डेल्टा है, रिंग्स के नाम है ये. तो ज़रा देखिए कि अगर मैं कहूँ कि ये लिस्ट अपर बाउंड है तो इससे छोटा, यानी इसमें से कुछ भी कम करोगे भाई, अगर किसी संख्या में से कोई पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे देन दैट विल बिकम्स लेस, कोई भी हो चाहे वो पहले से छोटी हो जाएगी. तो u माइनस एप्सिलॉन, अगर आपने u में से कुछ भी किया तो एक एलिमेंट ऐसा होगा s. If u is least upper bound of a set S, ये होगा if for epsilon greater than 0 there exists x belongs to S such that u minus epsilon is less than x. यानी u से छोटा कुछ भी थोड़ा सा भी कम कर दो चाहे. जैसे इसमें 4 है, 4 में से मैं मान लिया एप्सिलॉन मैंने 0.001 लिया, तो मैं 4 में से 0.001 कम करूंगा तो देन व्हाट इज दिस विल बी 3.999. एंड ये क्या है? ये लिस्ट अपर बाउंड नहीं है. क्यों? क्योंकि 3.9999 जो है वो इस सेट के अंदर बिलोंग करता है. फॉर एग्जांपल 1 for 1.1 to 4 interval, 4 is लिस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम. लिस्ट अपर बाउंड को ही सुप्रीमम बोलते हैं बिकॉज फॉर एग्जांपल आपने इसमें से ये 4 में से आपने एप्सिलॉन जो है अगर 0.001 लिया तो 4 माइनस एप्सिलॉन 0.001 माइनस किया 3.999 लिया तो क्या होगा? देयर एग्जिस्ट ये नंबर होगा 3.999999. ये इसमें है कि नहीं है? और वैसे ऐसी बात और बताऊं, अगर सेट इनफाइनाइट इस तरह का तो कम से कम एक तो होगा ही ऐसा, और ऐसे इनफाइनाइट भी हो सकते हैं क्योंकि इसमें 3.999 से बड़े और 4 से छोटे इनफाइनाइट नंबर्स हैं. तो इसलिए ऐसा नहीं है कि कम एक ही होगा. तो
For if 4 epsilon greater than 0, then there exists at least one x, कम से कम एक तो ऐसा x है सच दैट क्या u माइनस एप्सिलॉन करोगे तो ये क्या हो जाएगा x से x एक इससे नंबर बड़ा हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने इसे समझा होगा। ठीक है ना। आपके कोई भी इंटरवल ले लो, फॉर एग्जांपल 1 से जैसे 4 है। एक बात और ध्यान में बताऊं स्टूडेंट्स, लिस्ट अपर बाउंड सेट का मेंबर हो भी सकता है और नहीं भी। सुप्रीमम मे बिलोंग्स टू द सेट और मे नॉट, बट इन केस ऑफ मैक्सिमम विल बिलोंग टू द सेट। फॉर एग्जांपल आप जब अपनी क्लास में पढ़ रहे होते हैं और टीचर आपसे पूछता है, आपसे कभी ये नहीं पूछता कि आपके सुप्रीम मार्क्स कितने हैं, वो पूछता है मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। तो जो अगर सुप्रीमम सेट में ही हो जाए देन दैट विल बी मैक्सिमम। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 है, वो सुप्रीमम है, मैक्सिमम नहीं है क्योंकि 4 इसमें है नहीं। तो अब देखिए जरा, इस सेट का सुप्रीमम है 4 और वो सेट का मेंबर नहीं है। बट इन केस ऑफ 1 to 4, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्लोज इंटरवल ले लिया तो अब 4 इसका मेंबर है भी और सुप्रीमम होती है। ठीक है ना। तो सुप्रीमम का मतलब और लिस्ट अपर बाउंड का मतलब ऐसा नहीं कि कोई छोटा है, वो सेट के सारे मेंबर से बड़ा है, बट जो अपर बाउंड्स हैं उनमें सबसे छोटा है। और यानी कि अब उस मेंबर से छोटा कोई भी मेंबर ले लोगे, छोटा तो कितना हो सकता है, जैसे मैं अगर कहूँ 1 लाख में से 0.0001 भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो संख्या उससे छोटी होगी। छोटी होते ही जो भी संख्या होगी वो आपका अपर बाउंड का काम नहीं करेगी। अपर बाउंड का काम कब नहीं करेगी? जब एक एलिमेंट ऐसा होगा जो उससे बड़ा होगा। ओके, आई थिंक मैं जितना ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग जो है कंफ्यूज होंगे, तो मैं सीधी बात कर रहा हूँ कि भाई अगर ये लिस्ट अपर बाउंड है तो इससे छोटा कोई लिस्ट अपर बाउंड नहीं होगा तो क्या होगा, सेट का एक मेंबर होगा जो उससे बड़ा होगा। सिमिलरली ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यू कैन से बाउंडेड बिलो आल्सो। अब जरा देखिए बाउंडेड बिलो क्या है। A set is said to be bounded below if there exists an element small k। अब मैं बाउंडेड बिलो की बात करूं तो जरा देखिए, a set S is said to be bounded below if there is small k such that there is small k such that all elements of S are greater than equal to k। भाई अगर आप इसका ये क्या है, बाउंडेड बिलो है, तो एक नंबर हो जाएगा k जिससे सारे एलिमेंट बड़े ही बड़े होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन, बिकॉज 1 से सारे बड़े ही बड़े या बराबर हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये इंटरवल है 1 से 2, ठीक है जी, तो ये क्या है, बाउंडेड बिलो है। उसी तरह से आप ये सेट ले लो, चाहे भी लिया था 1 2 3 4, ये भी बाउंडेड बिलो है। क्यों? 1 से सारे बड़े बड़े। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे 1 इसका लोअर बाउंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दिस के विल बी कॉल्ड एज ए लोअर। और बहुत सारे लोअर बाउंड होते हैं, जैसे इसका ही 0 भी लोअर बाउंड है, -1 भी है, -2 भी है, सो इफ ए सेट इज बाउंडेड बिलो देन इट विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ ए लोअर बाउंड्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ए लोअर बाउंड्स। तो सो इतने अगर आंसर किसी क्वेश्चन के इनफाइनाइट हों तो हम लोगों को उस आंसर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन पूछोगे तो उसके जवाब इनफाइनाइट होंगे तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि किसका आंसर गलत है। तो सो जरा देखिए यहाँ पे क्या है, इनमें जो सबसे बड़ा है वो है 1। ठीक है ना। यानी अब इसे हम कहेंगे ग्रेटेस्ट ऑफ द लोअर बाउंड्स। क्या कहेंगे? ग्रेटेस्ट ऑफ द लोअर बाउंड्स। तो ग्रेटेस्ट ऑफ द लोअर बाउंड्स यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इन्फ्यूम। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्यों होगा? जैसे 1 है, इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, इन्फ्यूम कहलाएगा। तो ग्रेटेस्ट ऑफ लोअर बाउंड्स इज कॉल्ड एज इन्फ्यूम। ओके। फॉर एग्जांपल
अगर उसी तरीके से कहें जैसे इस इंटरवल का 1 है लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इस इंटरवल के लिए भी, यानी कि इससे बड़ा कोई लोअर बाउंड नहीं है, यानी कि इससे बड़ा कोई लोअर बाउंड नहीं है। और इसको हम लोग एल से नोट करेंगे, किससे? एल से। एल फॉर लोअर। एल इज सेड टू बी लोअर बाउंड ऑफ ए सेट एस इफ ऑफ ए, याद रखना स्टूडेंट्स, जो इनफाइनाइट सेट होता है, सॉरी इनफाइनाइट नहीं, एम्प्टी सेट होता है, वो बाउंडेड होता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि यही इसका अपर लोअर बाउंड, इसलिए हम उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो जो भी हमारे पास यहाँ पे होगा नॉन एम्प्टी सेट हम बात करेंगे। एल इज सेड टू बी लोअर बाउंड इफ फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट x belongs to S such that x is less than L plus L में कुछ भी जोड़ दोगे भाई, अब ये उससे बड़ा हो जाएगा, और बड़ा कोई वो क्या नहीं हो सकता, लोअर बाउंड हो नहीं सकता। कब नहीं होगा कोई लोअर बाउंड? जब उससे कोई सेट का ही मेंबर उससे छोटा हो जाए। नहीं, देयर एग्जिस्ट S belongs to such that L plus epsilon। फॉर एग्जांपल 1 इसका 1, वैसे तो इसका लोअर बाउंड कौन है? 1 है, 0.9 भी है, 0.8 भी है, -0.1 भी है एंड सो ऑन। इनमें जो सबसे बड़ा है वो है 1। 1 लिस्ट अपर बाउंड है, कैसे पता लगेगा? नहीं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, कैसे? 1 में कुछ भी जोड़ दो, जैसे 1 में मैंने जोड़ दिया 0.001, ठीक है, ये बन गया है 1.0001। अब क्या होगा? देयर एग्जिस्ट x, क्या है वो नंबर? जैसे ये नंबर आ गया, क्या है वो? बिलोंग्स टू इंटरवल 1 to 2 सच दैट इट इज लेस देन, किससे लेस है? 1.1। सो इट इज नॉट ए लोअर बाउंड, ये क्या नहीं है? लोअर बाउंड नहीं। तो सो बाउंडेड, जो बाउंडेड बिलो है उस सेट का लोअर बाउंड होगा। हम इसको एक्सियोम मान के चलते हैं स्टूडेंट्स, और दूसरा एक्सियोम हम प्रूव भी करेंगे, थ्योरम भी है इसके अंदर। अगर ये सच है कि ये एक्सियोम है कि कोई सेट अगर बाउंडेड बिलो है ना, तो उसका लिस्ट अपर बाउंड हो, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा ही होगा। अगर कोई सेट बाउंडेड अबोव है तो उसका लिस्ट अपर बाउंड होगा ही होगा। और इनमें से एक बात अगर हम सच मान लेते हैं, दूसरी प्रूव भी कर सकते हैं। यू हैव सम थ्योरम्स, कोई ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, मोटी मोटी बातें इसमें कर रहे हैं। तो ये बात हुई। लेकिन अगर कोई सेट बाउंडेड अबोव नहीं है, फॉर एग्जाम्पल दिस 1 2 3 एंड सो ऑन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अब हमें कोई नंबर पता नहीं है, तो यानी ऐसा नंबर कोई एग्जिस्ट ना करे कि जिससे आपके सारे के सारे एलिमेंट छोटे हों, तो ऐसा कोई भी ना हो, तो इसे कहेंगे बाउंडेड, अनबाउंडेड अबोव। और ऐसा कोई ना एग्जिस्ट करे कि जिससे सारे ही सारे छोटे हों, सारे सारे बड़े हों, ऐसा ना एग्जिस्ट करे तो ऐसे कहेंगे बाउंडेड बिलो नहीं है। और ऐसा जिससे सारे ही सारे छोटे ना हो, उससे कहेंगे वो बाउंडेड अबोव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ फॉर दिस बोथ भी, जैसे मान लीजिए इंटीजर्स का सेट है 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 एंड सो ऑन पीछे की तरफ, तो ये जो सेट है ये ना तो बाउंडेड अबोव है ना ये बाउंडेड बिलो है। तो सो इट इज बोथ नॉट बाउंडेड एंड बाउंडेड अबोव। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।